Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your homes and you all must be safe. Okay, so here I am, your teacher, Muskan Sharma from Vidya Balbhavan School. Okay, we will be studying maths today. So, students, we have completed our chapter, right? Chapter 6 we have completed. So, take out practice section of this chapter, percentage. Take out the practice section of the chapter percentage. Okay, we will do some practice today of this chapter. You must be having so many problems in this chapter as I have seen. Okay, so students, see in this chapter how will you get good marks or how will you get good score in this chapter? Only by practicing. If you will practice, then only you can understand this chapter, the concept of this chapter. आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा. प्रैक्टिस करो धीरे धीरे. आपको सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, सारी पीडीएफ्स आपको भेजी गई हैं. प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस करोगे उसकी तो आपको और समझ में आएगा. क्लियर? आप now we will do some more questions from the practice section of this chapter so that we can get to know about this chapter more clearly. Also complete your work everyone, okay, of your notebook. Each and every chapter you have to complete, okay, so that you can submit your notebooks whenever it is ब्रॉड. जब भी आपसे मांगी जाएगी तब आप उसको दे सकें. सो कंप्लीट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स को. ओके, कभी भी आपकी नोटबुक मंगवाई जा सकती है. एंड सो वी शुड मूव ऑन टू आवर परसेंटेज चैप्टर प्रैक्टिस सेक्शन. पेज नंबर 29. ओके, 29 पेज नंबर निकालिए. वी विल डू पेज नंबर 29. Okay, so students, we are starting revision exercise now. Okay, we are starting from question number 3. I am starting from question number 3. You have to start from question number 1 as always. First and second question is very easy. Okay, you all know मैंने बहुत बारी ये समझा भी दिया है और प्रैक्टिस भी कर लिया है हमने इस क्वेश्चन को. So you can do that question by yourself also. Okay. So students, this is the third question. Find the resulting increased or decreased quantity due to. So increased or decreased quantity due to first part. So here is the solution of this question. How you have to do it. First of all, इसमें increase है, decrease है, सब कुछ given है. ठीक है, question में A part है 15% increased in 38 kgs. सो 38 kgs में 15% इंक्रीज हुआ है, राइट. सो किस तरह से हम शो करेंगे कि इंक्रीज हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा कि 15% कितना होता है, राइट. हमें तो पहले यही निकालना पड़ेगा कि 15% कितना है. उसके बाद हम अपने केजीज में 38 kg में ऐड कर देंगे, राइट. पहले हम ये निकालेंगे कि 15% कितना है 38 kg का. उसके बाद हम 38 kg में उसको ऐड कर देंगे तो हमारा 15% इंक्रीज क्वांटिटी आ जाएगी, राइट. सो पहले 15% हम कैसे निकालेंगे? 15/100 इंटू 38, राइट. वी विल डू 15/100 बिकॉज इट इज़ 15%. जहाँ परसेंटेज का साइन मिल जाए वहाँ अपॉन में 100 होगा ही होगा. You have to learn this. If you are getting percentage sign with any number, there will be 100 on the denominator of it. Okay, then multiplying by 38. इसको 38 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. जब आप सॉल्व करोगे इसको, देखो मैंने पहले क्या किया है, 15 और 100 को सॉल्व किया है. क्लियर? मैंने पहले 15 और 100 को सॉल्व किया है. 15 और 100 5 से. 5 3s are 15, 5 20s are 100. देन 20 बचा और 38 बचा. 20 को मैंने 38 से कट किया 2 की ही टेबल से. 2 10s are 20, 2 19s are 38. क्लियर? लाइक दिस. अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया. 3 × 19 57 और नीचे जो बचा है जो भी
10 बचा है, मैंने 10 यहाँ लिख दिया। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है हमने, यहाँ पर 5.7 आ गया, राइट। तो 5.7 kg जो है वो है हमारा 15% ऑफ 38 kg। अब हमें क्या निकालना था कि अगर हम 38 kg में 15% बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, राइट। सो इंक्रीज हमें निकालना है 38 प्लस 5.7। अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43.7 किलोग्राम। क्लियर? दिस इज हाउ you have to do your A part. Moving on. Now moving on to our B part. To 12 1/2% increase in 450 rupees. So what we will do if there will be fraction with us. अगर fraction होगा तो हम क्या करेंगे? Firstly, write this improper fraction, this mixed fraction into improper fraction. इसको improper में लिखेंगे. Then 25/2% है तो 25/2 as it is into 1/100 कर देंगे into 450. Clear? 25 into 400. देन 4 को मैं 450 से कर रही हूँ, सो माई आंसर इज 225। और यहाँ पर 2 बचा है क्योंकि मैंने 2 से ही इसको डिवाइड किया है। सो न्यूमरेटर्स ऐड करके 225 आ रहा है एंड डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है। क्लियर? इफ़ आई विल सॉल्व दिस 225/4, अब 225/4 को सॉल्व भी करना है, उसको डेसिमल में भी लेके आना है, राइट। सो जब आप 225 को अपॉन 4 को आप डेसिमल में लेके आएंगे, सो व्हाट विल बी द आंसर? 56.25। आंसर विल बी 56.25, राइट। सो क्वेश्चन क्या है? इंक्रीज कैसे करोगे? 450 प्लस 56.25, आंसर आ गया 506.25। क्लियर? सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर बी. Only I'm doing C part for you all. D part आप लोग खुद करोगे, that is very easy. Now this is the C part for you all. I have done 7 1/3% decrease in 36. Clear? In which you will firstly change the mixed fraction into improper fraction, right, like this. So 22/3% of 36. Clear? Now what we will do again, 2/3 into 1/100 into 36, right. Now मैं 3 को 36 से सॉल्व कर रही हूँ, तो 3 into 1 3, 3 into 12 is 36. 12 मैंने यहाँ लिख दिया. देन 100 और 12 को सॉल्व किया, 100 को 2 से, 12 को भी 2 से, 2 से डिवाइड किया 12 को तो 6 आया, 100 को किया तो 50 आया. अगेन मेरे पास बच रहा है 6 और 50. तो जो 6 और 50 है ये वापस से 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैं इस यहाँ पर 2 से डिवाइड करके 50 को लिख रही हूँ 25. यहाँ आ जाएगा 3. अब कुछ भी ऊपर नीचे किसी भी नंबर से सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता. नाउ मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर्स, 22 into 3 66 अपॉन 25. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2.64. नाउ बिकॉज दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ डिक्रीज, तो डिक्रीज में हमें इस 36 में से माइनस करना था 2.64 को. जब माइनस करेंगे तो आंसर ये आएगा 33.36. क्लियर? सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाउ. नाउ वेरी इजी क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है. एक्सप्रेस एज फ्रैक्शंस, सिर्फ हमें इसको फ्रैक्शंस की तरह एक्सप्रेस करना है. 5% विल बी इक्वल टू 5/100. बस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको. आपको मैंने अभी बताया परसेंटेज का साइन देखते ही राइट 100 इन द डिनोमिनेटर, दैट्स इट. सी पार्ट ऑल्सो हैव डन. 45% मीन्स 45/100, दैट्स इट. इसके अलावा कुछ नहीं करना है. Now look at the fifth question. Express as decimal. We have to express it as decimal, right? 45% is the question. We will write first of all इसको fraction में लिखेंगे 45/100, right? Then आपको मैंने बताया था अगर 2 0 है तो 2 डिजिट न्यूमरेटर की 2 डिजिट पहले आपका पॉइंट आ जाता है. वैसे ही मैंने लिख दिया. आंसर क्या आया मेरा? 0.45, राइट. सी पार्ट 125%. 125% को मैं पहले कैसे लिखूंगी? 125/100, राइट.
Then we have to change it in decimal also. How we will change? 2 zeros हैं, 2 digit न्यूमरेटर की 2 digit के पहले point लग जाएगा 5 and 2. So answer will be 1.25. Okay, so this will be the whole answer of this fifth question. Moving on. Now moving on to our sixth question. How much is 25% of 100? ठीक है, 25% 100 का क्या होगा? Just write 25%. तो 25/100 लगा दिया इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे भी 100 है. 100 से 100 कट, आंसर इज 25%. Okay, so this is how you will need to do these type of questions. Now B part I am doing 15% of a meter. A meter है, then 1 we will write, right? आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो. दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, राइट? इसीलिए मैंने किया है, सबसे ईजी है ये. इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर यू कैन डू. इफ़ यू डोंट वांट टू डू जस्ट राइट इट लाइक दिस. 15/100 इंटू 1, 15/100. तो 15/100 को हम डेसिमल में चेंज करेंगे, आंसर आएगा 0.15%. क्लियर? Now I have done D part, last part I have done. Okay, 75% of 200 rupees. So 75 upon 100 into 200. 2 0 से ये 2 0 cancel, बचा 75 into 2. That's it. 75 into 2 क्या होता है? 150. So 150 is the answer. C part you will do it by yourself, and all the other parts which I have not done in previous questions you have to do it by yourself. Okay, I have shown you how to do all the questions, so this is how you will do. Okay, moving on. Now we are doing mental maths. Other questions of that revision exercise we will do it tomorrow. Okay, so mental maths में देखो first question क्या है? Symbol of percentage is, what is the symbol of percentage? We all know. Exactly, this is the symbol of percentage. Second question. Now 2/100 is equal to how many percentage? कितना परसेंट होगा 2/100? Exactly, अब हमने देख लिया कि 100 डिनोमिनेटर में है, तो अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो ऊपर वाला नंबर ही परसेंटेज होगा, सीधा सीधा. मतलब इसका आंसर क्या होगा? 2%. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.25. सो 1.25 जो है वो कितना परसेंट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेंज इट इन आवर फ्रैक्शन, देन वी विल कैलकुलेट. दिस इज हाउ वी विल डू. 1.25 को पहले मैंने चेंज किया फ्रैक्शन में, एंड 125/100 इज इक्वल्स टू 125%. वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. 50% ऑफ 100 इज इक्वल्स टू, 50% क्या होता है 100 का? 100 का 50% इज 50, राइट? क्वेश्चन इज 2.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? 2.5 क्या परसेंट है 50 का? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज 2.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, राइट? सो 2.5 क्या है 50 का, कितना परसेंट है? सो व्हाट वी विल डू, 2.5 डिवाइड बाय 50 इंटू 100. 50 इंटू 200 होता है, मैंने काट दिया. नाउ 2.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा. सो आंसर इज 5%. क्लियर? नाउ दिस इज द सिक्स्थ पार्ट. 300% मीन्स व्हाट? 300% क्या होता है? तो 300 अपॉन 100 इज, 300 अपॉन 100 इज, काटेंगे तो क्या आएगा? 3, बिकॉज 100 इंटू 3 इज 3. सो 300% मीन्स 3. दैट्स इट. क्लियर? That was all for today. Thank you so much, children. That was all for today. This is the end of the class and this video. Your homework is to complete the classwork till now. It is request to each and every child to help each other, right, so that you all can complete your work in this pandemic situation. Also, there is one more thing, that prepare for class test which will be held on 22 September. Clear? You will be having your class test of this. Clear? So prepare for that accordingly. Complete all the questions and practice all the questions. You will get to know each and every question. सब समझ में आ जाएगा आपको. Clear? So that was all. Thank you so much. Stay safe. Stay at your homes.